Hello everyone. Now let us discuss the fifth Mendelian disorder. According to the list, this is the fifth Mendelian disorder, and this is called as thalassemia. It is yet another very important Mendelian disorder, which can be explained according to the laws of inheritance described by the Mendel. So now see what happens in thalassemia. Thalassemia is of two types. So if a person is suffering from thalassemia A, this is also called as minor thalassemia. TH means thalassemia. And the second type is thalassemia B, which is also called as Cooley's anemia. The another name for thalassemia B is Cooley's anemia. So, if we talk about thalassemia A, it is caused due to heterozygous condition. Okay? And Cooley's anemia or thalassemia B is caused due to homozygous condition. Right? As you have studied the first four Mendelian disorders, the thalassemia is also autosomal recessive disorder. Means it is again autosome related disease. It is not carried by the sex chromosomes. In this, the bone marrow cells which synthesize RBCs are not properly working and hemoglobin produced is faulty. तो हीमोग्लोबिन फॉल्टी होने से आपने अभी सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन फॉल्टी होने से सिकल सेल एनीमिया भी होता है, मगर वो 6th पोजीशन पर चेंजेस आने से होता है. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोन मैरो में जो सेल्स हैं जो आरबीसीज बनाती हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही. वहां पर क्या था, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के समय 6th पोजीशन पे गड़बड़ होने के कारण हीमोग्लोबिन फॉल्टी होता था. यहाँ भी हीमोग्लोबिन फॉल्टी है, मगर यहाँ पर आरबीसीज बोन मैरो में बनते समय जो है प्रॉपरली अगर बन नहीं पाती तो जो है हीमोग्लोबिन फॉल्टी होता है, जिसके कारण थैलेसीमिया होता है. What happens here is जो अल्फा और बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की वो अफेक्टेड हो जाती है. सिकल सेल एनीमिया से कंपेयर करें तो सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन की 6th पोजीशन जो है वो अफेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों चेन हीमोग्लोबिन की अफेक्टेड हो जाती हैं. एंड फाइनली हीमोग्लोबिन चेन फॉर्मेशन खत्म हो जाता है, रुक ही जाता है. मीन्स थैलेसीमिया के केस में अगर पर्सन थैलेसीमिया से अफेक्टेड है और इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, जो हीमोग्लोबिन चेन फॉर्मेशन है वो बंद हो जाती है. एज आई टोल्ड, इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. इसका मतलब थैलेसीमिया के जो जीन है वो स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे क्योंकि ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है. तो वी विल रिप्रेजेंट इट एज AT80. The symptoms of this disease are the person who is suffering from thalassemia, his or her lower abdomen gets swollen. So the lower abdomen portion is developing swelling and the person becomes जो है severely anemic. जो है इंसान का जो हीमोग्लोबिन है वो फॉर्मेशन बनना ही बंद हो गया, हीमोग्लोबिन चेन बन ही नहीं रही है, उसका सिंथेसिस ही नहीं हो रहा. तो उसके कारण क्या होगा कि पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एनेमिक हो जाएगा. एंड फाइनली इफ द कंडीशन इज नॉट अंडर कंट्रोल एंड नॉट getting any medical attention properly, then this person may eventually will die of anemia. One more important information which should be added over here, that thalassemia A is also called as alpha thalassemia and thalassemia B is also called as beta thalassemia. One more type is also there mentioned in some of the books, and that is delta thalassemia. So thalassemia A or thalassemia alpha is caused due to change or deletion or point mutation in chromosome number 16, whereas thalassemia beta और thalassemia delta दोनों ही क्रोमोसोम 11 में चेंजेस, म्यूटेशन या डिलीशन के कारण होते हैं. सो अल्फा और A is due to chromosome 16 which gets mutated or changed, and beta and delta are due to chromosome 11. So let us summarize what happens in thalassemia. It is of two types, थैलेसीमिया A और थैलेसीमिया अल्फा, थैलेसीमिया बीटा और थैलेसीमिया B, and थैलेसीमिया डेल्टा और थैलेसीमिया D. So as I told you, it is due to change or mutation in the chromosome number 16, and both of these are due to the change or mutation in the chromosome number 11. So it's a kind of point mutation.
ये म्यूटेशन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर क्रोमोसोम में फॉर्मेशन के समय किसी पॉइंट पर किसी समय पर कोई चेंज आ जाए, कोई एक्स्ट्रा कोडिंग हो जाए या कुछ डिलीट हो जाए या कुछ अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो जो है क्रोमोसोम फॉल्टी हो जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स मिसबिहेविंग, और जिसके असर आपको जो है बीमारियों के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो थैलेसीमिया इज अगेन एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोम नंबर 16 और 11 जो है ऑटोजोम में आते हैं। 22 फर्स्ट टू 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोजोम्स और 23rd जो है सेक्स क्रोमोसोम है। तो थैलेसीमिया में 16th और 11th क्रोमोसोम जो है रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द टाइप इज गेटिंग म्यूटेटेड। सो आई होप थैलेसीमिया इज क्लियर टू यू। और थैलेसीमिया का मेन फीचर क्या है कि जो पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया उसकी आरबीसीज जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती क्योंकि बोन मैरो सेल्स में उनका प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण हीमोग्लोबिन चेन नहीं बनती। और मेजर इसका पता कैसे चलता है कि पर्सन जो है वो सीवियरली एनेमिक हो जाता है। तो थैलेसीमिया का जो पता है वो इसी से चलता है कि पर्सन डेवलप सीवियर एनीमिया, right? So I hope thalassemia is also clear to you. Thank you for watching.